Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Yash. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, Gargi. Good morning, ma'am. Good morning, Viresh. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, I just need to check whether Manish has put his attendance or not. Good morning. Good morning, Kanika. Do we have Manish in the class? No, he is not there. Yes. Everyone come. Good morning, ma'am. Good morning, Beta. Good morning. Good morning, Beta. Beta, flowcharts are over. Yes, ma'am. One table was left. Okay, Yes, then. ma'am. One table was. One table, political party. Okay, or state political party. State party. Yes, ma'am. Okay. Sure, fine. So, do we need to do that? ऐसा करते हैं बेटा, टेबल को रहने देते हैं, वो बाद में कर लेंगे टेबल को, वो बाद वाली क्लास में कर लें. अभी चैप्टर शुरू करते हैं ज्योग्राफी का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, रीजन बीइंग दोनों सेक्शंस में हो गया है, खत्म हुए, आप लोग के साथ नहीं हो पाया है. ठीक है. मैम फिर टेबल नहीं करेंगे आज. टेबल लास्ट वाले पीरियड में कर लेंगे, है ना. ओके मैम. And see, there are many students, those who do not join the second class. Mind you, your attendance is considered for both the classes because you are having 2 lectures in a day. Don't think that first lecture you are attending, second lecture you will exempt, you will be given attendance full marks. No. Both the lectures you are supposed to attend. There are many those who come only in the first lecture, second lecture they generally avoid. Right? Yes, ma'am. Chaliye, I am just sharing the screen with you all. You have the books with you, all of you? Yes, ma'am. Fine. Yes.
Good morning, ma'am. Good morning, Divansh. Ma'am, this is of ninth class. नो बेटा, अभी हम निकल रहे हैं इससे बाहर. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, how many chapters are there in geography? Just a second. Excuse me, ma'am. In class. Excuse me, ma'am. Yes, बेटा. Ma'am, please may I reconnect? क्या हुआ दक्ष? Nothing, ma'am, but like your voice was not coming. My voice was not coming. Late. My voice was not coming. Yes, ma'am. So I have to हाँ, reconnect कोई because दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको आ रही है आवाज आराम से? yes, ma'am. हाँ, बस ठीक है. चलिए, हम बोल भी नहीं रहे थे. I was trying to share the screen with you all. चलिए,
manufacturing industries. What do you know about this manufacturing industries? Anybody in the class? Can we have the cameras open, please? Ma'am, may I? Yes, Nana. What do you understand by manufacturing industries? Manufacturing industry means like the goods which are raw or which are made, like we can say cotton. So we obtain it as a raw material, but then it goes in industry, it gets manufactured and fibers are made out of it. So like making or manufacturing big, like small raw materials into a useful product. Okay. May I? Yes, Yash. Ma'am, manufacturing industries can be explained in such a way that manufacturing industries acts like a pillar between raw material and finished goods. It can convert raw material into finished goods. That is known as manufacturing. That is known as manufacturing. Okay, fine. Ma'am, may Now, I? yes. Ma'am, may I? Okay, wait. I will ask many of you, don't worry. Okay, Himanshu. Manufacturing industries are the transformation of goods, materials, or substances into new products. Okay, fine. Viresh, do you know? Farm industry is a place which converts the agricultural goods to the desired products which we want. Like the rubber industry converts the rubber to tires. Desired. ठीक है. Okay. It is not necessary, Viresh, that only the agricultural products are used. we can use other products as well, right? Yes, Gargi. Ma'am, can we say raw materials are converted to the raw material? desired? Yes. We always say that the raw material that is, obtained is always processed in these. From primary sector into secondary sector. Yes. Gargi, you were saying something, beta. And I was about to say the same thing. What? You can always say, no issues. And that manufacturing industries belong to the secondary sector of production. Yes, the manufacturing industries, they belong to the secondary sector. Like, what is the secondary sector? You are aware of the primary sector, you are aware of the tertiary sector, you are aware of the secondary sector. I think in Yes, economics, you people have done this, right? Yes, ma'am, in eco we have done this. Chapter 2, sectors of the economy. Sectors to economy. Sectors of the economy. Now, why these sectors are important? What are these manufacturing industries? What kind of role is played by these manufacturing industries? Why manufacturing industries are considered as the backbone of any country's economy? Why are they given so much of importance? Right? Yes, ma'am. All these things Yes, things ma'am. all these things we are going to read in this chapter. See, for any country, if we want to know the development of if you want to know about the development of any country's economy, we need to see that which sector has more of the workforce, right? And if we find that a country has more of its workforce in the secondary and the tertiary sector, we can say that it is a developed economy, right? Because there is less dependence on the agriculture and more people are employed in the secondary and the tertiary sectors, right? Do you remember that population Yes, chapter? ma'am. Do you remember the population chapter that you did in class 9? Ma'am, it was deleted. Acha, it was deleted. Ma'am, it was not there? deleted. Okay, fine. No issues. I'll just okay. Now, when we say manufacturing industries, we say that they are important, as Yash has given the definition, as Himanshu said, and the others, those who gave the definition of manufacturing. Manufacturing is basically processing something raw into a finished product, right? There are different processes that are involved in the
manufacturing of a product. Say for example, if we say textile or cotton textile, we all know that the cotton balls, they are obtained from the agricultural fields. These cotton balls, they are processed, they are spinning is done, they are changed into yarn, then this yarn is changed into fabric, and the fabric finally takes the shape of any material. What do you call Clothes. clothes like Ma'am, please repeat, ma'am. I was disconnected. yes, Raghav. Ma'am, please repeat again, ma'am, what you have told me because I was disconnected, ma'am. See, I am saying that whenever we say processing a raw material into a finished good, there are several processes involved. Say, for example, if we say this textile, cotton textile, if we talk about the cotton fabric, we all know that the cotton fabric is obtained from the cotton ball that is cultivated in the fields. After it is obtained, this cotton ball is sent for the spinning. It is converted into yarn. This yarn is converted into fabric, and then fabric is converted into different desired dress materials. Right? Right? Okay. So this manufacturing sector is a very important sector because acha chalo, before we start with this manufacturing wala thing, okay, let me tell you about, see, the screen is visible to everyone, no? Yes, ma'am. Fine. Now see, Yes, we all know primary sector, primary, secondary, and tertiary. Now these three sectors that we have, there is a complete interdependence of these sectors, right? We cannot say that Yes. primary sector can alone, work. We cannot say that secondary sector alone can work, and we cannot say that tertiary sector can alone work. All the three sectors that we have, they are interdependent. Why they are interdependent? Can anyone tell why they are interdependent? Ma'am, because primary sector Because produces the raw material And for sector the produces secondary the raw sector. material, Yes. In the Yes. secondary, and it and the raw material manufactures is it, obtained and from the in primary tertiary we sector. have to transport it and other facilities to provide to Yes. the country. Yes. To be more specific, see, when we say primary sector, we are actually talking about the sector that provides the basic raw Raw material, materials. right? Raw material, Raw material. When we say secondary, manufacturing. manufacture. Manufacturing, Ma'am, industrial manufacturing. हाँ, या ये कह लो processed goods. ठीक है? Secondary sector has processed goods with it, and the tertiary sector that we have, Transportation. And transport. Transportation. or we can say services, right? Every kind of services that are given to us are part of the tertiary sector, right? All the goods that we use, they are processed in the secondary sector, and the raw material that is processed in the secondary sector, it is obtained from the primary sector. So if we exempt any of these sector from this chain, the chain will not be complete, because primary sector will produce the raw material, but then it will not have sufficient industries to process that raw material into a finished goods, right? And if we cut out this tertiary sector, and if we add primary and secondary in the chain, again we will not be in a better condition, because we all know that the tertiary sector provides us transport. Banking is also part of this tertiary sector, right? So when there are no loans, when there is no financial aid, how these manufacturing industries are going to work, and how these primary sector is going to provide raw material to the industries, right? So the three of them, they go hand in hand. They go hand in hand. Like, we say that the industries and the agriculture, they go hand in hand, because if agriculture is not there,
If the raw material is not produced under the agro-based industries that we have, then how the industries are going to process the finished good, right? So agriculture and industry for our country, it goes hand in hand, because our country is an agrarian economy where most of the raw material is provided by the agricultural sector. अगर आप देखो इंडिया की बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड करती हैं. अगर आप ऑटोमोबाइल और उसको निकाल दो तो उसके अलावा देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज व्हिच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल गुड्स, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, under which industry will NASA like things will come? And under what, Videsh? I'm like NASA will come under which industry, which type of industry? NASA? Yes, ma'am. NASA तो बेटा एक अलग पार्ट हो गया ना. NASA एक completely अलग पार्ट हो गया. It's not an industry. नहीं, इंडस्ट्री नहीं होगा बेटा. ये तो आपका जो है, आप ये समझ लो कि ये एक तरीके से अच्छा, अगर हम इसको कैटेगराइज करना चाहें, It is for research. ये हाँ, ये नहीं तो ये इसको आप उसमें या इसको हम प्राइमरी उसमें डाल सकते हैं. रिसर्च वगैरह प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होते हैं ना, क्योंकि जब रिसर्चेज होती है तभी तो किसी चीज के बारे में पता चलता है और उसको हम फर्दर आगे प्रोसेस कर पाते हैं. ठीक है, ऐसे बड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन है विदेश, ये इसके अंदर नहीं आएगा ये. ठीक है, ओके मैम. बस ये मतलब दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू डील विद, यू नो, आपका ये स्पेस वगैरह इन सब से होता है ना? ठीक है, हाँ, चलो, इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. चलिए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. फाइन. अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस. अगर किसी भी कंट्री में, अच्छा ठीक है, अभी एक चीज और रह गई है बेटा, बस जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है, डेवलपमेंट का क्राइटेरिया फॉर एनी कंट्री हम कैसे डिसाइड करते हैं? इसका प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर्स पे. अगर किसी भी कंट्री का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा प्राइमरी सेक्टर पे है तो वो कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री कहलाएगी. ठीक है, अगर किसी कंट्री का मेन जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो वर्किंग फोर्स है, इज इन द सेकेंडरी सेक्टर, उसको हम बोलते हैं अ डेवलप्ड इकोनॉमी. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं. जैसे अगर आप एग्जांपल लो अमेरिका का, रशिया का, जापान का, ये जो कंट्रीज हैं, इनमें इनकी जो मैक्सिमम वर्क फोर्स है वो आपकी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में है. ठीक है, इन सेक्टर्स में होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो है ये जो सेक्टर्स हैं, ये डेवलपमेंट के जो इंडेक्स होता है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. जितना ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर में होगा, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होगी, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी को जो है बूस्ट मिलेगी. एम आई क्लियर? Yes, ma'am. राइट. और जितना ज्यादा किसी भी कंट्री में जितना ज्यादा पीपल आर इनटू द प्राइमरी सेक्टर, उतना ही ज्यादा उस कंट्री की इकोनॉमी को जो है, उस कंट्री की इकोनॉमी को हम डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे है. और किसी भी कंट्री का अगर प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंस ज्यादा होता है तो उस कंट्री का जो स्टेटस होता है, इट इज कंसिडर्ड एज अ डेवलपिंग कंट्री. राइट? Ma'am, can you please repeat the status for tertiary sector? नहीं, टर्शरी सेक्टर बेटा, जिस भी कंट्री में सेकेंडरी और टर्शरी में ज्यादा वर्कफोर्स होती है, वो एक डेवलप्ड कंट्री कहलाती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं, पीपल आर एम्प्लॉयड, पॉवर्टी नहीं है, इलिटरेसी नहीं है. ठीक है, आप देखो अमेरिका वगैरह में इन चीज जो फैक्टर्स आप अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया और अमेरिका की इकोनॉमी को, तो हम ये डिफरेंस पाते हैं कि भाई इंडिया में जो है ज्यादा डिपेंडेंस इज ऑन द प्राइमरी सेक्टर. वो अलग चीज है कि आज की डेट में आप देखो तो ये धीरे धीरे देयर इज अ शिफ्ट, एक शिफ्ट जो है हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी कंट्री में, बिकॉज द सेकेंडरी सेक्टर वी आर मेकिंग सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग बाय हैविंग मोर एंड मोर ऑफ इंडस्ट्रीज. क्योंकि हमारी कंट्री ने एकदम जो है
रूट लेवल से स्टार्ट करी ये सब चीजें। जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर था वो भी बहुत ज्यादा र्यूंड था, हमारा सेकेंडरी सेक्टर था ही नहीं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो था। तो सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया गया, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों पे एक साथ हम लोगों ने फोकस करा, बट हमारा ज्यादा फोकस प्राइमरी सेक्टर पे था क्योंकि कंट्री एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो आपके एग्रीकल्चर को ज्यादा सपोर्ट करती हैं क्योंकि मोर एंड मोर पीपल आर इनटू एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। पर धीरे धीरे ये शिफ्ट जो है हो रहा है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है प्राइमरी टू सेकेंडरी? वो इसलिए क्योंकि इस सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट कर रही हैं। उसके अलावा भी हमारी जो जैसे इंडस्ट्रीज, अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इनको भी कैटेगराइज किया जाता है ओनरशिप के बेसिस पे, है ना। अब ओनरशिप के बेसिस पे लार्ज स्केल होती है, स्मॉल स्केल होती हैं। कॉटेज भी तो इंडस्ट्रीज आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, अगर आपको याद हो, क्लास, है ना। हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि भाई कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं जो सबसे ज्यादा छोटे लेवल की होती हैं, फिर आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया होता है इट इज अबव 1 करोड़, ठीक है। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिनमें अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन है। तो क्योंकि इंडिया जहां से इंडिया ने ग्रो करा आफ्टर ब्रिटिश रूल, तो उस टाइम पे इंडिया एकदम से सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट नहीं कर सकता था क्योंकि उसको अपने प्राइमरी सेक्टर को पहले स्ट्रॉन्ग करना था। तो प्राइमरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करा, उसके बाद उसने सेकेंडरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करा। अब धीरे धीरे ये जो शिफ्ट है ये फ्रॉम दी प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर जा रहा है, ठीक है। अब इसके जाने का क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि कंट्री इज डेवलपिंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी। हमने शायद ये भी पढ़ा था ना ह्यूमन रिसोर्सेज में कि किस तरीके से कोई कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट क्राइटेरिया जो है उसके यूथ से पता चलता है कि अगर किसी कंट्री का यूथ जो है 14 to 40 के एज उसकी एज वाले सर्कल में अगर आता है तो दैट मीन्स दैट कंट्री इज इन अ वेरी फेवरेबल कंडीशन वेयर country can achieve the path of success in ensuring development, overall development of the country, right? Yes ma'am, India is one such country. Yes, India is one such country. तो अगर हम देखें तो बहुत बहुत तरीकों से इंडिया इज इन अ वेरी फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ बेटा ये? हाँ जी बोलो यश। Ma'am, I have read somewhere that during the independence, India decided that industries will be its prime moving force, neither agriculture. That led a huge difference in today's manufacturing industry field. That's why India is a little lagging behind the industrial field. बेटा वो इसलिए, हाँ you are right, that is because I told you, see India is an agrarian economy. Maximum population is into cultivation only, agricultural activities only. That is why agriculture was given more. And during that time when India became independent, at that time India was in such a condition that the country had to import food grains. तो वो condition बड़ी खराब होती है भाई, किसी देश के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है खाने के लिए, तो वो कंडीशन तो बहुत खराब है। उस कंडीशन में आप अपनी इंडस्ट्रीज को अगर बूस्टअप करोगे तो बाकी लोगों के साथ क्या होगा? इंडस्ट्रीज तभी तो बूस्टअप हो पाएंगी जब आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, राइट? है ना। तो ये ऑफ कोर्स ये उस टाइम पे ये डिसीजन लिया गया था कि हम इंडस्ट्रीज, आप ये देखो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, उस फर्स्ट 5 ईयर प्लान में मैक्सिमम कंसंट्रेशन वाज ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल सेक्टर को जो है इंपॉर्टेंस दिया गया था, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर को दिया गया था। सेकेंडरी सेक्टर को जो बूस्ट मिला वो धीरे धीरे जब हमारा प्राइमरी सेक्टर थोड़ा बहुत जब आपका जो है बूस्टअप हो गया प्राइमरी सेक्टर, तब जाके सेकेंडरी सेक्टर इनिशियली से देखो, आप ये देखो जो आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है ये शुरू से है हमारी कंट्री में, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज तो थी ही थी, इसके अलावा भी और इंडस्ट्रीज को आना था, बट वो तभी आ सकती थी जब प्राइमरी सेक्टर हमारा स्ट्रांग होता। भाई लोगों को जब खाने को मिलेगा तभी तो वो कुछ और काम कर पाएंगे। आप देखो खाली पेट आप कभी दिमाग चला पाते हो? नहीं चला पाते हो ना? यस मैम। नो मैम। है ना, एम्प्टी स्टमक तो बहुत मुश्किल होता है कुछ भी सोचना। तो
जो कंट्री ने ये डिसाइड करा कि भाई पहले हम लोगों को खाने को देंगे, उसके बाद हम बाकी चीजों को देखेंगे। तो पहले उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो डिपेंडेंस है ऑन द अदर कंट्रीज फॉर द फूड ग्रेन्स, उसको पहले हमें खत्म करना है। फिर जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो और चेंजेस आए, उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीटली जो है हमारा कंट्री, आज आप देखो अगर हम कंपेयर करते हैं उस टाइम को और आज की डेट को, तो हम ये पाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमारा कंट्री हैज बिकम, इट इज ऑन अ वेरी बेटर, इन अ वेरी बेटर पोजीशन, यू नो, इफ यू कंपेयर। बेटर पोजीशन क्यों है? क्योंकि आज की डेट में वी आर एक्सपोर्टिंग सेवरल काइंड्स ऑफ, यू नो, फूड ग्रेन्स। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हो तो हर तरीके का अच्छा प्रोडक्ट जो हम पैदा कर रहे हैं, जो फाइनल क्वालिटीज हम पैदा कर रहे हैं, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है। ठीक है, फिर चाहे वो टी ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो आपका राइस एंड व्हीट ही क्यों ना हो, इवन जो लेंटिल्स वगैरह है ये भी जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनल क्वालिटीज ऑफ एवरीथिंग वी आर एक्सपोर्टिंग। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए। Yes, ma'am. When we talk of the importance of the manufacturing, it is important because it reduces the dependence on agriculture. जो कंट्री, जो लोग बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा स्ट्रांग है तो ये जो डिपेंडेंस है वो खत्म हो जाता है। उसका रीजन ये होता है, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ी है ना आपने? Yes, ma'am. अब क्या होता है, अब क्या होता है कि हमें एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड है, इतना सा, इसको हमें कल्टीवेट करना है, इसमें 4 people आर मोर देन सफिशिएंट, पर क्योंकि कुछ और है ही नहीं करने के लिए, तो 10 to 12 people आर कल्टीवेटिंग दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड वेयर ओनली 4 वर रिक्वायर्ड। तो क्या होगा, जो यहाँ पे जो भी हो रहा है, जो कल्टीवेशन हो रही है, उसकी जो उसमें जो डिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा हो रखी है। भाई 4 लोग, 8 people आर एक्स्ट्रा, ये जो एक्स्ट्रा लोग हैं इनकी वजह से क्या हो रहा है, जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होगा तो ये जो 8 लोग हमारे एक्स्ट्रा इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हो सकता है इनके अंदर कैलिबर हो, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी हो टू वर्क इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जाके ये काम कर सकते हैं। जब ये सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम करेंगे तो यहाँ से इनका डिपेंडेंस खत्म हो जाएगा। जब यहाँ से डिपेंडेंस खत्म होगी तो ये जो 4 लोग काम कर रहे हैं, इनका जो प्रॉफिट अर्न होगा वो भी सफिशिएंट होगा, इनके ग्रोथ के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए इतना सफिशिएंट होगा कि ये जो ग्रो कर रहे हैं इसको बाद में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन दी नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, Yes, डिपेंडेंस वाला पार्ट क्लियर हो गया? दूसरा, yes, जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा स्ट्रांग होता है बेटा, तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी अपने आप खत्म हो जाती है। आप देखो, अगर आप कंपेयर करो 70s का जो टाइम पीरियड था या 80s का जो टाइम पीरियड था और जो आज का टाइम पीरियड है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अनएम्प्लॉयमेंट भले, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भले ही हम ये नहीं कह सकते कंप्लीटली खत्म हो गया है, बट हाँ आप ये देखो, बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर लिया। इतने सारे स्कीम्स चलाए हैं, इतने सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं गवर्नमेंट ने कि उनको जो है फंड्स मिल रहे हैं, उनको एड्स मिल रही हैं, उनको फाइनेंशियल एड मिल रहा है टू टू इस्टेब्लिश देयर ओन बिजनेस। अपना खुद का कुछ क्रिएटिव जो भी वो करते हैं, उन सब न्यू प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि भाई आप इसको, इस काम को करो या उस काम को करो। तो ये चीजें जो हैं, ये भी एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दोनों को जो है कंप्लीटली खत्म करता है। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, ma'am. अब दूसरा आप आ जाओ, थर्ड आप आ जाओ, इट रिड्यूसेस द रीजनल डिस्पैरिटी। ये जो रीजनल डिस्पैरिटी होती है, इसको ये कंप्लीटली खत्म करता है। कैसे? जो हमारे जो अंडर डेवलप्ड जो रीजन्स हैं, जो अनडेवलप्ड रीजन्स हैं या जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, उनको ये एक तरीके से बूस्टअप देता है। जैसे अगर हम देखें, ये झारखंड वगैरह जो है स्टेट्स है, झारखंड स्टेट जो है, ये यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मिनरल कंसंट्रेशन, इन जगहों पे इंडस्ट्रीज ये और ज्यादा आ रही हैं। इंडस्ट्रीज के ज्यादा आने से जो यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिल रहा है, और जो रीजनल वेरिएशंस थे कि भाई इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट या इन टर्म्स ऑफ मनी, वो बहुत ज्यादा जो है खत्म हो रहा है। एक तरीके से हम प्रोस्पेरिटी जो है वो गेन कर रहे हैं। ठीक है,
Yes, ma'am. राइट। और जब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होता है तो ट्रेड और कमर्स जो है वो भी हमारा बढ़ता है। व्यापार जो हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा कॉमर्स पार्ट है वो हमारा बढ़ता है, ट्रेडिंग हमारी बढ़ती है। आप देखो आज की डेट में इंडिया इज इन सच अ फेवरेबल कंडीशन कि बाहर की कंट्रीज हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं। बाहर की कंट्रीज का लिबरलाइजेशन, आपने लिबरलाइजेशन पढ़ोगे आप इकोनॉमिक्स में, आप ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे होगे, तो ये लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ कि भाई हमारे कंट्री में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है कि हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पॉवर्टी खत्म हो रही है, राइट? Yes, ma'am. Right, class? I hope this much is clear and Yes, understood. ma'am. This much is clear and understood. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. हाँ जी गार्गी, बोलो बेटा गार्गी। Can you explain regional disparity again? बेटा रीजनल डिस्पैरिटी में आप देखो हमारे कंट्री में अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं तो सारे स्टेट्स एक जैसे डेवलप नहीं है। क्या कर्नाटक में जो कर्नाटक के बैंगलोर में जो डेवलपमेंट का जो लेवल है, क्या वो बिहार में वैसा ही है? No, ma'am. नहीं है ना, तो रीजनल वेरिएशन है Yes, ma'am. है ना। तो ये Yes. रीजनल डिस्पैरिटी इज दिस, अगर इंडस्ट्री ज्यादा होती है तो उससे ही रीजनल वेरिएशन भी जो है वो खत्म, रीजनल डिस्पैरिटीज जो है वो भी खत्म हो जाएंगी। आई होप दिस मच इज क्लियर एंड अंडरस्टूड। Yes, ma'am. चलो Yes. चलो, एनी अदर पॉइंट दैट इज नॉट क्लियर? ऑल क्लियर एंड अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, कैन वी यस शिवांशी? ma'am. यस शिवांशी? बेटा मैम कुछ इट वाज नैना। अच्छा नैना क्या कह रहे थे बेटा आप? Ma'am, I said that this flowchart we have to make now or later only. बेटा अगर बना सकते हो तो भी बना लो, ये फ्लो चार्ट बना लो क्योंकि ये बनाना ही है आपको, ठीक है? Okay, ma'am. Ma'am, the meeting is about over, so can we take screenshot हाँ, and यू कैन then टेक do द it? स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, है ना। वैसे छोटा सा ये बन जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि टाइम लगेगा। हम कौन सा? Excuse me, ma'am. हाँ जी गार्गी बेटा बोलो। गार्गी, Ma'am, was there any flowchart for mineral and energy resources? आई थिंक वी हैव डन, नो? No, ma'am. नहीं No, ma'am. पर बेटा वो चैप्टर तो अब हट गया है ना आप लोग के उसमें से, शायद सिलेबस में से।